ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدارس ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا خطابت کا شہسوار بھی کہہ سکتے ہیں اور تجربے کار بھی، کیونکہ وہ زبان و بیان میں ایسی مہارت رکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کی گفتگو میں سامع کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ اپنی تقریر ایک دردمندی، ایک مجاہدانہ حوصلہ، ایک عالمانہ سوچ اور صحیح فکر کا آئینہ دار ہوا کرتی ہے۔ جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ علم کا دفتر کھل گیا ہے۔ میری مراد خطیب عصر، فقیہ لسانی، ہم سب کے مشرق و مربی اور مدرسہ ہذا کے صدر المدرسین حضرت مولانا قمر الزمان صاحب ندوی ہیں۔ میں حضرت والا سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی نورانی بیانات سے ہم سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ حضرت والا مائک پر۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله العظيم۔ عزیزان گرامی، ملک عزیز کے معزز باشندگان، مدرسہ اسلامیہ مخزن العلوم بھیسا مافی کے معزز ممبران، بھیسا مافی کے معزز عوام، مائیں بہنیں، آپ تمامی حضرات کا دل کی گہرائیوں سے آج کے اس جشن آزادی کے پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ ہم اپنے جملہ اساتذہ کرام کی طرف سے، ممبران مدرسہ کی طرف سے، معاونین مدرسہ کی طرف سے آج کے اس پربہار تقریب سعید میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا تہہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری اور ہمارے طلباء کی حقیر سی دعوت کو قبول فرمایا اور جلسے گاہ میں تشریف لائے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کا دن تاریخ ہند میں ایک عظیم دن کی اہمیت رکھتا ہے۔ آج ہم اور آپ جس جشن کے منانے کے لیے یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں، وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ یوں ہی کہیں گری پڑی مل گئی ہو یا اس کے پیچھے کچھ لگا نہ ہو۔ عزیزو، ہم اور آپ اس وقت جس حالت اور جس کیفیت میں زندگی گزار رہے ہیں، خدا کا لاکھ کرم اور احسان ہے۔ ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے، ملک عزیز کے ہم وطنوں نے اس ملک عزیز پر چھائے ہوئے کوہن کے بادل کو کس طرح سے دور کیا ہے۔ ہم ذرا پیچھے آج سے تقریباً 76-77 سال پیچھے جائیں اور پھر ہندوستان کو
अपने उन आँखों से देखे जो आज से 77-76 साल पहले के थी। हिंदुस्तान के हालात, आज हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, हमारा मुल्क आज़ाद है, आईन हमें आज़ादी का हक देता है, आज़ादी के साथ अपने धर्म व मजहब और मसलक के साथ रहने का हमें हक देता है। लेकिन ये तमाम आज़ादियाँ किस कुर्बानी के नतीजे में मिली, कब और कैसे मिली, इसका पेश खेमा क्या रहा है। आप लोग जानते हैं कि हमारा मुल्क आज जो एक छोटा सा मुल्क बनकर रह गया है, कभी ये अखंड भारत के नाम से जाना जाता था, कभी ये सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, कभी ये मुल्क ये था कि वो यूरोप और 7 समंदर पार रहने वाले बाशिंदगों की निगाह में सोने की चमक, हीरे की दमक वहाँ से इन्हें खींच लाई अपने मुल्क की तरफ, क्योंकि हमारा मुल्क माला माल निहाल था, हमारा मुल्क सोने की चिड़िया का खिताब हासिल किए हुए था, हमारे मुल्क में सोने उगते थे, यहाँ के पेड़ पत्तों पे हीरे जवाहरात उगते थे और यहाँ के लोगों के अंदर वो खुसूसियात थी। आज भी वो खुसूसियात रियासतों में पाई जाती है, लेकिन आज़ादी के दुश्मन और आज़ादी के खून करने वाले अफराद आज इस मुल्क की अमन और सलामती, इस मुल्क की प्यार और मोहब्बत, इसकी गंगा जमुनी तहजीब और इसके अनेकता में एकता की जो मिसाल है, इसको तार तार करने के लिए इन्होंने 1 शताब्दी कबल तकरीबन 100 साल पहले एक प्लान बनाया था और अपने आकाओं और अपने मालिकों और अपने मौलाओं के किस तरह से तलवे चाट कर अंग्रेजी हुकूमत को यहाँ से बेदखल करने के लिए इतना लंबा वक्त लगवा दिया कि एक हिंदुस्तानी, एक सच्चा हिंदुस्तानी, एक सच्चा देशभक्त, एक सच्चा देश प्रेमी जो होता है, उन्होंने किस तरह से अपने मुल्क के लिए अपनी गर्दनें कटवाई, गोलियों की बौछार को अपने सीने से रोका और इस मुल्क को जालिम के जुल्म से रोका, और रोका ही नहीं बल्कि यहाँ से इस कदर भगाया जिस तरह वो यहाँ आए हुए थे। आप लोग जानते हैं कि तकरीबन 1601 या 1603 में अंग्रेजों का वरूद इस सरजमीन पर हुआ और तकरीबन 100 साल की कड़ी मेहनत के बाद इन लोगों ने यहाँ पर अपने पांव जमाने शुरू किए। ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी कायम की और उस कंपनी के आड़ में यहाँ की रियासतों को अपनाना शुरू किया। जब देखा यहाँ के राजा महाराजा छोटे छोटी रियासतों के राजा और छोटी छोटी रियासतों के नवाब आपसी खाना जंगी में बटे हुए थे, आपस में लड़ रहे थे, उसको गनीमत समझा और उनको कुछ लालीपाप दे करके, कुछ लालच दे करके, रियासत के जिम्मेदारान बना करके उनको अपने साथ किया और सच्चे मुहिब्बे वतन के साथ गद्दारी करने के लिए उन्हें उकसाया उन लोगों ने पलासी के मैदान में सिराजुद्दौला को उनके फौजियों के जरिए से और उसके वजीर खास के जरिए से मीर जाफर के जरिए से गद्दारी। 3000 की फौज 70 के मुकाबले में है, 70 की फौज 3 के मुकाबले में हार जाती है, क्योंकि जब गद्दारी कहीं आती है तो अपने पांव खुद उखड़ जाते हैं। वो 313 थे तो लरसता था जमाना। एक वाकया ये था कि जंगे बदर में जब मुसलमानों की तादाद 313 थी और कुफ्फार मुशरिकीन और बातिलों की तादाद हजारों में थी, उस वक्त उनके अंदर ईमानी जुर्अत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इस्लामी रियासत की बका और कयाम के लिए अपना सब कुछ निछावर करने का जज्बा और दिल में इस तरह सरायत किए हुए था, जिस तरह से खून दौड़ता है जिसमें के रगों के अंदर, इस तरह से था। तो वो 313 1000 पर गालिब आ गए और बतला दिया कि तुम्हारी कसरत पर अपने आप को इतना ना इतराओ, कसरत से कुछ नहीं होता है। हकीकत तो ये होता है जब जवां मर्दी आती है, ईमानी जज्बा होता है
किसी को पाने के लिए, कुछ पाने के लिए मर मिटने का जज्बा होता है तो सामने की बड़ी सी बड़ी ताकतें बेहिच और बेकार होती हैं। ये देखा सिराजुद्दौला की फौजों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर के गद्दारी की तो अंग्रेजों की फौज 3000 थी और सिराजुद्दौला की फौज 70,000 थी। उसके बावजूद भी बड़ी जिल्लत के साथ हार गए, नाकाम हो गए, बेमुराद हो गए और फिर मीर जाफर को जो उसे वादा किया गया था मिला, लेकिन उसकी नाअहली की बुनियाद पर मीर कासिम को फिर उसका नायब बनाया गया, उसकी जगह दी गई। लेकिन अंग्रेजों ने भाप लिया कि मीर जाफर था, मीर कासिम कोई और है। इन्होंने मिलकर के हिंदुस्तान से अंग्रेजों को हटाने के लिए जब दिल्ली से लेकर के बंगाल तक पूरे दौरा किया और खतूत के जरिए से लोगों को जोड़ना शुरू किया, लोगों को अंग्रेजों को मालूम हुआ, उसे भी माजूल किया गया। बहरहाल तारीख बहुत लंबी है, लेकिन लोगों ने 1857 से लेकर के 1947 तक की जंग आजादियों को सिर्फ याद करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि 1857 से पहले भी हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में रहते थे, अंग्रेज इसी हिंदुस्तान पर मुसल्लत थे। फिर 1857 से लेकर के 1757 तक की जंग आजादी को क्यों नहीं याद किया जाता है? 1757 से लेकर के 1701 तक की तारीख को क्यों नहीं याद रखा जाता है? 1701 से लेकर के 1601 तक जब अंग्रेजों का यहाँ पर आना हुआ था, उस वक्त के हालात को क्यों फरामोश कर दिया जाता है? हकीकत तो ये है जब जिन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी की, अंग्रेजों की दलाली की, उनके पांव दबाए और माफी नामे की एक लंबी सी लिस्ट तैयार की, वो लोग आज सबसे बड़े देशभक्त, देश प्रेमी बने हुए हैं और उन लोगों से प्रमाण मांग रहे हैं देशभक्ति का, देश प्रेमी का, जिन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान किया, जिन्होंने अपने आप को बर्बाद किया, अपनी बीवियों को बेवा किया। बहादुर शाह जफर मुगलिया सल्तनत का आखिरी फरमारवा, आखिरी चश्मो चिराग, उसको जब कैद करके रंगयन को काला पानी में उसे कैद किया जाता है और उसे मजबूर कर दिया जाता है कि तुम्हें आखिरी दम तक यहीं पे रहना है। अब जिस मुल्क में जहां पर तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारे बाप दादा अकबर से लेकर के बाबर तक और उससे पहले जब तक मुगलिया का यहाँ पर उरूद हुआ है, उस खानदान के लोगों ने, तकरीबन मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की, लेकिन ऐ बहादुर शाह जफर, तुम्हें यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी, तुम्हें इस मुल्क में जगह नहीं मिलेगी। जाओ रंगून जाओ। और काला पानी की सजा जब होती है, बहादुर शाह जफर जो बहुत बड़े शायर भी थे, बहुत बड़े अदीब भी थे, मुगलिया सल्तनत के आखिरी चश्मो चिराग भी थे, उन्हें जब कैद कर करके वहां पे रखा गया तो उन्होंने अपने मुल्क की मोहब्बत और इससे लगाव और यहाँ के लिए सब कुछ कुर्बान करने का जो जज्बा उसके अंदर था, उन्होंने अपने शेर के जरिए से वो गजल जब आज गुनगुनाई जाती है तो जिसके अंदर हिंदुस्तानियत बाकी है, जिसके अंदर देश प्रेमियत जर्रा बराबर भी बाकी है, उसके आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं, इमोशनल हो जाता है, भावुक हो जाता है, अपने आंखों पर काबू नहीं पाता, आंसू लगातार गिरने लगते हैं। वो कहता है कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पाएदार में। और उन्होंने एक जुमला और कहा, ये कहा, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। बहादुर शाह जफर का पूरा खानदान अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मार दिया गया और अंग्रेज ने रंगून के काला कोठरी में जब उसको सुबह नाश्ते पेश किया जाता है तो तश्त में उसके दोनों बेटों के गर्दन कटी हुई और उसके ऊपर कपड़ा ढका हुआ तश्त में पेश किया जाता है सुबह बहादुर शाह जफर के सामने। जरा हम और आप बतलाएं, सब लोग साहिबे औलाद हैं, हर एक की औलाद हैं, जरा अपने बच्चे की जब उंगली कट जाती है उस दर्द को हम महसूस करते हैं, कराह उठते हैं, उसके लिए क्या नहीं जतन करते हैं, डॉक्टर से लेकर के बड़े बड़े मेडिकल के मुशीरोकारों से मशवरे लेते हैं। एक उंगली कटने पर इस कदर हम
कुड़ जाते हैं, अपना आपा खो देते हैं। जरा बतलाओ, वक्त का बादशाह, मुगलिया सल्तनत का शहंशाह, उसके बेटों को उसके सामने काट करके सामने ला करके नाश्ते में तश्त में उसके सरों को पेश किया जाता है, उस बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी। उन्होंने कहा उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और उन्होंने ये कहा बुलबुल को पासबां से, बुलबुल को सैयाद से न, बुलबुल को पासबां से न सैयाद से गिला, बुलबुल को पासबां से न सैयाद से गिला। किस्मत में कैद थी लिखी फसले बहार में, वो अपनी किस्मत को दोष देते हैं और किस्मत का सहारा लेते हैं कि हमारी किस्मत में शायद कैद ही लिखी हुई थी, वरना एक बुलबुल परिंदा शाखों पर चहचहा रहा है बड़ी आजादी के साथ। लेकिन वो शख्स जो इसने मुल्क पर हुकूमत की और अपने इस मुल्क को सींचने के लिए, आबोताब बख्शने के लिए, इसको मेराजे सुरैया पर, औजे सुरैया पर ले जाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसे आजादी का हक हासिल नहीं। और फिर उन्होंने कहा कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी मिल न सकी कोई यार में। वो जिसका बचपना गुजरा, जिसकी जवानी इस मुल्क के खाक में गुजरी और जिसका पूरा बुढ़ापा भी इस मुल्क की आबियारी के लिए गुजरा, वो इस कदर आजिज और बेचारा बना हुआ है, इस कदर लाचार और बेबस बना हुआ है कि उसे दफन होने के लिए इस मिट्टी में, इस सरजमीन में 2 गज जगह भी नसीब नहीं हो रही। और उन्होंने कहा कि दिन जिंदगी के खत्म हुए और शाम हो गई, दिन जिंदगी के खत्म हुए और शाम हो गई, फैला के पांव सो गए गुंचे मजार में। कह रहे हैं कि अब तो जिंदगी खत्म हो चुकी है, कोई हसरत बाकी नहीं है। ये हसरत जो आखिरी हसरत ये थी, आखिरी आरज़ू जो तमन्ना थी कि जिस मुल्क में पैदा हुआ, जिस मुल्क को सब कुछ अपना निछावर कर लिया, सब कुछ अपना जाना माना, उस मुल्क में मरना नसीब नहीं हुआ। चलो नहीं हुआ, अब तो जिंदगी के दिन खत्म हो जा रहे हैं, अब क्या करते हैं, फैला के पांव सो जाते हैं, यानी गुंचे मजार आखिरी सांस के लिए अब हम विदा होते हैं और अपनी आखिरी आरामगाह में चले जाते हैं। एक वक्त में जब एक मर्द मुजाहिद ने अंग्रेज के कोर्ट में जब बम फेंका था, गालिबन सरदार भगत सिंह, अंग्रेजों ने उनसे बड़े ताज्जुब के साथ कहा कि अंग्रेजों ने, मुगलिया सल्तनत के मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की, आपने वहां पर कभी बम बारूद नहीं फेंके। अंग्रेज आए अभी 150 साल हो रहे हैं, 200 साल करीब हो रहे हैं, आपने उनके पार्लियामेंट में बम फेंक दिया। उन्होंने कहा सुनो, अरे वो लोगों जो कहते हो ना कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तानियों का है, वो लोग जरा कान खोल के सुने। अगर सरदार भगत सिंह को मानते हो, सरदार भगत सिंह को मानते हो, उनको अपना आदर्श मानते हो, तो जरा उनके जुमले को सुनो। वो कहते हैं कि ऐ लोगों, ऐ अंग्रेजों, सुनो, तुमने जो हुकूमत की है, तुमने जो हुकूमत की है, हिंदुस्तान को लूटने का काम किया है। और मुगलिया सल्तनत ने आए तो जरूर बाहर से थे, आए तो जरूर बाहर से, लेकिन जो आया यही का होकर रह गया, जो कमाया यही के तामीर और तरक्की में खर्च किया, जो कुछ कमाया यहीं पे लगाया और आखिर में इसी मिट्टी में समा गए, यहाँ से एक जर्रा भी लेकर के नहीं गए। और आए अंग्रेजों, तुम तो खाली हाथ आए थे और यहाँ से पूरे हीरे जवाहरात ले जा करके अपने मुल्क बरतानिया के बंद पड़े हुए कारखाने और कलों को, कि तुम वहाँ की जो चिमनिया में जो धुएं उठ रहे हैं, हिंदुस्तान से जाने वाले मादनियात, हीरे जवाहरात की देन है कि तुम्हारी कंपनियों में और तुम्हारे कारखानों में जान पड़ गई है। दुश्मनी इसकी नहीं है,
तुमने लूटा, उन्होंने बनाया, और उन्हीं के बनाए हुए चीजों को तुम लूट रहे हो। और आज लोग जो मसनदे इक़्तिदार पर जलवागर हैं, वो भी उन्हीं मुगलिया सल्तनत के बनाए हुए तमाम धरोहरों को गिरवी रख करके अपना खर्चा चला रहे हैं। ताजमहल हो, लाल किला हो, लाल किला अगर आज ना बना होता तो कहाँ झंडा फहराते? लाल किला ना होता, झंडा कहाँ फहराते? पार्लियामेंट जो बना हुआ है पुराना, इस तरह से और बहुत सारी चीजें जो हिंदुस्तान की धरोहर है, जिनसे करोड़ों की इनकम होती है करोड़ों की, वहां पर तो कोई ऑप्शन, कोई नुकसान नहीं होता है। बस हुकूमत में जब नाकामी होती है तो मजहब के नाम पर, जात पात के नाम पर लोगों को लड़ा दो, अपनी हुकूमत की नाकामी खुद ब खुद छुप जाएगी। आरएसएस और उससे झैली तंजीमें जो भी गुजरी हैं, इन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में जर्रा बराबर भी कोई किरदार अदा नहीं किया। अगर ये कहा जाए कि अगर ये लोग साथ दिए होते तो आज़ाद मुल्क और पहले आज़ाद हो जाता, अपना मुल्क और पहले आज़ाद हो जाता, लाखों की कुर्बानियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये 1857 तक खालिस तौर पर सिर्फ मुसलमान कुर्बान हुए। 1857 के बाद बिरादरान वतन भी कंधे से कंधा मिलाए हैं। और गांधी जी को जब महात्मा का खिताब शेखुल हिंद अलैहिर्रहमा ने दिया, और उसके बाद फिर लोग उनके काने से कंधा मिला करके और अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का काम किया। वो सुबह जिसका हमारे बुजुर्गों ने इंतजार किया और ख्वाब देखा था, जिसके लिए अपनी गर्दनें कटाई, अपना माल और ज़र कुर्बान किया, वो जिंदा तो हमारे बीच में आज़ादी के वक्त नहीं रहे, लेकिन अल्लाह ने उन कुर्बानियों को बेकार नहीं किया, ज़ाय नहीं किया। तभी तो अल्लाह ने कहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो राह खुदा में मार दिए जाए वो शहीद होते हैं, और शहीद कभी मुर्दा नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपनी दीन के हिफाजत के लिए मारा जाए वो शहीद, जो अपने बाल बच्चों की रोजी रोटी और उनके इंतजाम और इंसराम के लिए मारा जाए वो भी शहीद, जो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए मारा जाए वो भी शहीद। जिन लोगों ने मुल्क अजीज के लिए अपने जान का नजराना पेश किया है, हम ये अकीदा रखते हैं कि वो जिंदा है। जिंदों के ऊपर मौत तो आ जाती है बज़ाहिर, लेकिन अपनी कब्रों में, अपनी आखिरी आराम गाहों में वो जिंदा होते हैं। अल्लाह कहता है उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून। लेकिन तुम्हारे अकल की रसाई वहाँ तक नहीं हो सकती कि अल्लाह उन्हें जिंदा किस तरह रखे हुए हैं। बहरहाल बड़ी जिद्दोजहद, कोशिशों, कुर्बानियों के बाद 15 अगस्त 1947 को वो आज़ाद मुल्क में आज़ाद सूरज तुलू हुआ और तमाम लोगों ने खुशी के नगमे गाए, आज़ादी के तराने गाए। आज उसी का 75वां यौम आज़ादी हम बड़े खुशी के साथ, हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी तरह से हर ये कौमी त्योहार को मनाने के अल्लाह ताला हमें क़ुव्वत और ताकत और हौसला अता करे, और हमारे इस मुल्क अजीज पर पड़ने वाली बदनजरों की बदनजरी का अल्लाह खुद इलाज करे। जालिमों को, जो लोग मसनदे इक़्तिदार पर बैठकर मुल्क को तोड़ने की कोशिश करते हैं, अल्लाह उनकी हुकूमतों को तोड़ दे, उनके ताकतों को पाश कर दे, और जो लोग मुल्क में अमन, शांति, गंगा जमुनी तहजीब और कल्चर को बाकी रखना चाहते हैं, अल्लाह उन्हें और हौसला और उन्हें क़ुव्वत और उन्हें शक्ति प्रदान करे। अल्लाह से यही दुआ है। आखिर में फिर मैं आप तमाम लोगों से
बड़े आजिज़ी के साथ और बड़ी खुशी के साथ अपने दिल की गहराइयों से वो अल्फाज नहीं मिल पा रहे हैं जिसके ज़रिए से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। बस एक आम सादे अल्फाज में सहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग आए, जलसे को कामयाब किया, हमारे तलबा और हमारे असातिज़ा स्टाफ का आप लोगों ने हौसला बढ़ाया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आपका बहुत बहुत एहसानमंद हूँ और आपसे दरख्वास्त भी करता हूँ कि जब भी कोई प्रोग्राम मदरसे में हो आप लोग इसी कदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और ये बाहर बावर करा दें कि मदरसा कोई अनाथ खाना नहीं, यतीम खाना नहीं है, बल्कि ये मदरसा है जहाँ पर मरदम साजी का काम होता है, इंसानियत नवाजी का काम होता है और देश प्रेमी बनाया जाता है, देशभक्ति का पैगाम दिया जाता है, देश के नाम पर और देश की उन्नति के लिए मर मिटने का यहाँ पर संदेश और पैगाम दिया जाता है। ये कोई मदरसा अनाथ वाला नहीं है, बल्कि इसके सरपरस्त भी हैं, ज़िम्मेदारान भी हैं, मिंबरान भी हैं, मुआविनीन भी हैं, मुखय्यरीन भी हैं, खैर खा भी हैं और इसके लिए अपना सब कुछ निछावर करने वाले भी हैं। बड़ी खुशी हुई आप लोग आए। अल्लाह ताला आपके आने को कबूल फरमाए, हमारे कहने को कबूल फरमाए, आपके अमल करने को अल्लाह तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व आखिर में चंद मिनट आप लोग और तशरीफ़ रखें, बच्चों को इनाम बांटा जाएगा। जिन लोगों ने यहाँ पर तकरीरें पेश की, नात पेश किए, हमद पेश किए या मकालमे पेश किए, मदरसे की तरफ से उन्हें इनाम से नवाजा। उसके बाद सब लोग बैठे, शीरनी मदरसे की तरफ से जो भी इंतज़ाम हुआ है आप लोगों के ताउन से उसको एक प्रसाद समझें, तबर्रुक समझें, उसको लेकर तभी लोग जाएं, इससे पहले कोई ना उठे। ये कौन था किसने बिखेरी थी मस्तियाँ, ये कौन था किसने बिखेरी थी मस्तियाँ, हर वर्रा सहन बात का सागर बदोश है। या फिर ये कहूँ कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिनों रात बदल सकते हैं। यारो तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं।